It's me Ashit Yadav. Now in this lecture we are going to discuss about the previous year question of the Zoology Honors Paper 3 for the year 2019. And sorry for the yesterday, I was not able to upload the videos because I had gone to the college, and after coming from the college I got to stuck in such a work that I don't get any time yesterday. So don't worry, we are starting from today's onwards, that about the question paper of the year 2019. So instruction will be the same for the oral question, that is question number 1 and 2 will of the compulsory, that is question number 1 of comprises of the objective question of 50 marks, question number 2 of the short notes, that we have to write short notes on any three that given question 5, and from question number 3 to 10 we have to write only question 3 question that we have to answer in the long answer question. Okay, so the first question is write the correct answer of the following objective question. It will be of the objective, that is excretion in neurochordates is through the neural gland. Okay, excretion in the neurochordates is through neural gland. Question number 2 is neurochordates respiration occurs through the gills only. Okay, wheel organ is part of the oral hood. Okay, and question number 3 is ductus silvari is another name for the cardinal veins. Okay, and anticoagulant in petromycin is secreted by the salivary gland. Enteromittent organ in scleroderma, it is the medial part of pelvic fin. Okay, the teeth in dogfishes are modified, it is modified placoid. Erythrocytes in amphibians are, it is the erythrocyte, that is the RBC. Erythrocyte is the scientific name of the RBC. Okay, it is the oval and nucleated, its size is oval and nucleated. Okay, एरेथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम किसका आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरेथ्रोसाइट होता है. वो एम्फीबियंस में क्या होता है, वो ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूटोनी रेफर्स टू क्या होता है इसमें, रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर्स इन एडल्ट, यानी क्या होता है जो एडल्ट होते हैं उनमें मतलब जो लार्वा होता है उनमें एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर शो करता है, उसको हम लोग न्यूटोनी कहा जाता है. ठीक है, ये फिशेस में होता है ज़्यादातर, एम्फीबियंस में भी होता है न्यूटन, सॉरी. ठीक है, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू, ये किस में सेंसिटिव होता है, ये एयरबोर्न वाइब्रेशन से. ठीक है, ये मतलब कि आदमी के आहट से, यानी कि उनके चलने के मतलब वाइब्रेशन जो होता है, हम लोग किसी भी चीज़ का काम करते हैं उससे ये आदमी उसको पहचान सेंसिटिव होता है उनका. ठीक है, द एज रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इन रेप्टाइल्स का एज हुई थी मेसोजोइक एरा में इनका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं, ये सिनेप्सिड लाइन ऑफ इवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं. इन बर्ड्स वॉलंटरी मूवमेंट आर कंट्रोल बाय, इट इज कंट्रोल बाय द सेरिबेलम, जो कि उनका दिमाग में प्रेजेंट होता है. सोचिए, बर्ड का भी, पक्षी का भी दिमाग होता है. ठीक है ना, हम लोग तो इंसान है, थोड़ा वो दिमाग होना चाहिए ना. पैक्टिन इज एब्सेंट इन बीच वर्ड, ये किस में होता है, कीवी जो वर्ड होती है इनमें पैक्टिन एब्सेंट होता है. ठीक है, टाइपिकल फोटोथेरियल कैरेक्टर इज, ये क्या होता है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, जो कि फोटोथेरियल कैरेक्टर है इनका. ठीक है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, ये क्या होता है, शॉर्ट नोट लिखना होता है हम लोग को, जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ होता है. ठीक है, तो इसी में किसी 3 को लिखना होता है, किसी 3 के ऊपर लिखना होता है. जैसे व्हील ऑर्गन दिया हुआ है, बैटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है, और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पीसीज दिया है. इसमें 4 ही दिया, 4 में से किसी 3 को लिखना होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हम लोग को मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, classify aves up to orders by giving their characters with suitable examples. Describe the blood vascular system of Hardemania in details. Describe the blood vascular system in Scleroderma. Describe the origin and evolution of amphibian. Describe the orogenital system of Uromastric. What is migration? Describe different kinds of migration and problems of migration in birds. Add a note on any 3 of the following. ये 9 नंबर क्वेश्चन भी नोट के रूप में दे दिया गया है. ठीक है, पॉज्ड मैमल्स के बारे में, फ्लाइंग मैमल्स के बारे में, और गेनोमिंग मैमल्स के बारे में, और कैटेरियन मैमल के बारे में लिखना था, और गिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ प्रोथेरियंस एंड देयर एफिनिटीज. ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना था. सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में पूरा कवर किए हुए हैं, इसका लेक्चर भी है, इसका सारा नोट्स भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं. अगर आपको इसका नोट या PDF चाहिए हो तो आप इसको टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में, जहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेसन. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर एंड स्टडी वेल. दैट्स ऑल.